हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज in an isolated system remains constant. It means that charge can neither be created nor be destroyed in an isolated system. Are you getting? Charge can neither be created nor be destroyed. We cannot produce the charge, we cannot destroy the charge, but the charge of an isolated system is always conserved. That is known as conservation of electric charge. We can see here the example of conservation of electric charge. We are having the example number 1, uranium 92 to 38 decay by emitting alpha particle. If the uranium is emitting alpha particle, what will happen? Look here, uranium 92 to 38, after decaying this element we can get thorium and helium 90 to 34 2 to 4. We can check whether charge is conserved or not. Here number of electrons before decay, the number of electrons is 92 Q1. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर डीके, डीके के बाद का इलेक्ट्रॉन्स कितने 90, थोरियम प्लस में हीलियम 2, 90 प्लस 2 92. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर डिकेइंग Q1, आफ्टर डिकेइंग Q2. इट मीन्स Q1 इक्वल टू Q2. इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. एग्जाम्पल नंबर 2, HCl. HCl, it forms H plus and Cl minus. The net charge is 0. Here net charge is 0. Minus 1 plus 1. Net charge 0. Here Q1 equal to Q2. Net charge is 0. We can take the another example. In pair production, gamma ray photon on interacting with matter transforms into an electron and positron. Are you getting? Gamma ray photon on interacting with matter transforms into an electron and positron. Gamma net charge is 0. Here electron minus E plus E, net charge 0. Electric charge is conserved. अगला, during inhalation of matters, when an electron combines with a positron moving in opposite directions, they produce two gamma ray photon. When electron and positron moves in opposite direction and combine, then in this case charge is conserved. Look here, they are moving in opposite direction and combine to form the two gamma photons. The net charge is minus plus 0. Here 0. Charge is conserved. Everywhere in the world charge is conserved. That is known as conservation of electric charge. This was the last property. 5 properties conservation of electric charge. Now we are here for the charging. What is charging? You know what is charging? Charging means mobile charging. It is the process of giving electric charge to anybody. Are you getting? To give charge to anybody is known as charging. Charging means we can give positive charge or negative charge. Okay, what are the methods of charging? How can you charge anybody? First is charging by friction. You know charging by friction. It is also known as charging by rubbing. How? When a glass rod is rubbed with a silk cloth, the glass rod acquires some positive charge and the silk cloth requires negative charge by the same amount. Okay, the body which donates the electron becomes positively charged, while that which receives the electrons becomes negatively charged. Are you getting? जब हम एक
ग्लास रॉड लेते हैं और एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं, दोनों को आपस में रगड़ते हैं तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क पर नेगेटिव आ जाता है। जैसे यहाँ देखिए एक ग्लास है रॉड, दो आपस में रब करते हैं, रब करने के बाद चेक करते हैं तो इस पे माइनस, इस पे प्लस। तो बिफोर द प्रोसेस, आफ्टर द प्रोसेस, अगर यहाँ नेट चार्ज देखें तो जीरो है, यहाँ भी नेट चार्ज कितना है, जीरो। चार्ज इज कंजर्व, यहाँ भी कंजर्वेशन लग गया और चार्ज भी बन गया, यानी चार्ज इसको मिल गया, यानी चार्जिंग हो गई, यानी चार्ज इसको मिल गया। तो इसको कहते हैं हम लोग चार्जिंग बाई फ्रिक्शन या रबिंग। ये तो क्लियर है, याद था, 10th क्लास में पढ़ना ही था हम लोग को। अब अगला है, एक है इलेक्ट्रिक सीरीज। इलेक्ट्रिक सीरीज क्या होता है भाई? इलेक्ट्रिक सीरीज में देखिए एक सीरीज बनाया गया है, फर, फेनेलन, ग्लास, कॉटन, सिल्क, लेदर, वुड, 2 बार वुड लिखा गया है, वैक्स, एम्बर, पॉलीथीन, प्लास्टिक। इसको ध्यान से देखिए है क्या है। ये आपका एरो ऊपर जा रहा है, ये वाला एरो नीचे जा रहा है। अगर हम इस सीरीज में किसी भी 2 रबड़ या कोई 2 चीज़ लिया जाए, कोई भी 2 लीजिए, आपस में रगड़िए, चेक करिए। जैसे ग्लास और सिल्क, ग्लास पे पॉजिटिव, सिल्क पे नेगेटिव, यानी ऊपर वाले पे पॉजिटिव और नीचे वाले पे नेगेटिव प्रोड्यूस होगा। कैसे देखिए, फ्लैनेल, ग्लास को रगड़िए, फ्लैनेल पे प्लस, ग्लास पे नेगेटिव, लेकिन ग्लास को कॉटन से रगड़िए, ग्लास पर पॉजिटिव, कॉटन पर नेगेटिव। ये सीरीज आपको याद रखनी है। लिखा है, दिस सीरीज इज यूज टू फाइंड द नेचर ऑफ द चार्ज व्हेन एनी 2 बॉडीज आर रब्ड टुगेदर। द सबस्टेंस अपर इन सीरीज बिकम्स पॉजिटिव एंड सबस्टेंस लोअर्स इन सीरीज बिकम्स नेगेटिव। अगर हम किसी भी 2 को ले गए तो एक बॉडी जो है हो सकता है प्लस भी हो, नेगेटिव भी हो, यानी ये डिपेंड करेगा कि ये किससे रब किया गया है। अगर ऊपर वाले से रब किया है तो इस पर नेगेटिव, और नीचे वाले से किया है तो इस पर पॉजिटिव। ओके, तो दैट इज द सीरीज, इलेक्ट्रिक सीरीज। नेक्स्ट है चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। बात क्लियर है, फिजिकल कांटेक्ट क्या है? चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट, व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्राउट इन कांटेक्ट विद अनदर अनचार्ज बॉडी इट मे एक्वायर चार्ज सिमिलर टू द चार्ज बॉडी। अगर हम एक बॉडी को दूसरे बॉडी के संपर्क में लाते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो ड्यू टू कंडक्शन द अनचार्ज बॉडी बिकम्स चार्ज्ड। वी कैन सी हियर एग्जांपल। देखिए चार्ज बॉडी है ये, आप क्या करिए, इस पे इसके ये नज़दीक लाइए और इसको लाके कांटेक्ट में रखिए। कांटेक्ट में रखेंगे तो इसका जो चार्ज है यहाँ तक जाएगा, तब तक जाएगा जब का दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। फिर इसको अलग कर लेंगे, ये चार्ज हो जाएगा, चार्ज हो गया, ये अनचार्ज बॉडी चार्ज हो गया। दिस बॉडी बीइंग चार्ज, दिस हैपेंस ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस। सही बात है, दिस हैपेंस ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस। दिस इज व्हाट? दिस इज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोसेस। तो ये था हमारा चार्जिंग बाय कांटेक्ट। कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। अगला देखिए, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू चार्ज अ बॉडी और कंडक्टर विदाउट बी कॉन्टेक्टेड। अगर हम किसी बॉडी को बिना कॉन्टेक्ट किए ही चार्ज कर सकते हैं, बिना छुए, दिस इज नोन एज इंडक्शन मेथड। ओके, इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ न्यूट्रल कंडक्टर और बॉडी बाई प्लेसिंग इट नियर अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज नोन एज चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसके नज़दीक अगर कोई अनचार्ज बॉडी लाया जाए तो वो अपने आप चार्ज हो जाता है, उसी को कहते हैं इंडक्शन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अगला इसका एग्जांपल देखिए कैसे। मान लीजिए हमारे पास है एक यूनाइट रॉड चार्ज है और ये है मेटल स्फीयर अनचार्ज है। अब इसको क्या करें, नज़दीक ले आइए, यहाँ देखिए नज़दीक लाइए, नज़दीक लाएंगे तो ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस। इस पे नेट चार्ज जीरो था, लेकिन नेट चार्ज जीरो मीन्स जितना प्लस उतना माइनस। माइनस जो है प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो अपने ओर अट्रैक्ट कर लिया। माइनस इसमें जो ऊपर जो प्रेजेंट होगा माइनस उसको रिपेल करेगा तो इधर चला जाएगा। इसको हटा लेने के बाद फिर ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको देखिए सी को, अभी इसको हम लोग अर्थिंग कर देंगे,
यहाँ से देखिए अर्थिंग कर दिया, अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग करेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, अर्थ में। क्या बचेगा, प्लस। ये प्लस नहीं जाएगा क्योंकि ये अट्रैक्शन में इसे ये बचा रहेगा। आप इसको करेंगे, अर्थिंग को यहाँ से हटा देंगे, हटा दिया अर्थिंग को, ये है प्लस इधर रहेगा। फिर इसको यहाँ से ये वाली बॉडी को ही रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, प्लस, यानी चार्ज हो गया ये। यानी कि इसमें हमने किसी भी बॉडी को एक दूसरे के संपर्क में, कांटेक्ट में नहीं लाया। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, इसी का एक्सप्लेनेशन है, ये सारा एक्सप्लेनेशन इसी का है जो हम बात किए कि इसको नज़दीक लाएंगे, कटाएंगे, इसको हटाएंगे, फिर इसको चार्ज करेंगे, फिर ये सारी चीज़ें हैं वो चार्जिंग बाय इंडक्शन का है। अगला देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझिए। इसमें दो बॉडी है, एक साथ संपर्क में है, एक साथ दो बॉडी को ही चार्ज करना है। यानी कंसीडर टू मेटालिक स्फीयर ए एंड बी इन कॉन्टेक्ट प्लेस्ड ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड्स। इस तरह से रखा हुआ है, दो बॉडी है और दोनों क्या है, अनचार्ज्ड है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड इज ब्राउट नियर स्फीयर ए विदाउट बीइंग कॉन्टेक्ट। इसे नज़दीक लाने पे क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नज़दीक लाने पे प्लस अगर है तो माइनस इधर चला जाएगा सब, अब प्लस वाला है इधर चला जाएगा। देखिए ये माइनस इधर चला गया, सारे कॉन्टेक्ट में है, आई प्लस दूर तक जाएगा। करना क्या है, इसको अलग कर दीजिए, यहाँ से प्लस आ गया, ये माइनस इधर है, फिर इसको अलग कर दीजिए। ठीक है, तो ये अलग अलग आ जाएगा चार्ज। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है, देखिए इसको, इफेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर सकता है। देखिए स्टेट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, अगर चार्ज रेस्ट में है, एट रेस्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, याद करने वाला चीज़ है सब। मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी अगर चार्ज रेस्ट में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अगर मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। अगर एक्सेलरेटेड है, मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से, तो तीनों प्रोड्यूस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, ये आप एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव से लेके और कंपटीशन तक भी आता है हर जगह। तो इसको भी हम लोग देख लेंगे, इफेक्ट ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में ये सारे रट लेंगे हम लोग। अगला है चार्जिंग बाई पोलराइजेशन। ये क्या होता है भाई, चार्जिंग बाई पोलराइजेशन में दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर बैड कंडक्टर्स और डाइलेक्ट्रिक्स। जो हम लोग पढ़ा अभी तक वो कंडक्टर के लिए था, ये है इंसुलेटर के लिए। जैसे इंसुलेटर है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है इंसुलेटर, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल बने होते हैं, प्लस माइनस सब होते हैं, इसका नेट चार्ज जीरो होता है। लेकिन जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो ये एक एलाइन हो जाते हैं, सारे डाइपोल एलाइन हो जाते हैं। कैसे, देखिए यहाँ ये चार्ज बॉडी रख दिया इसके नज़दीक, अब रखने के बाद क्या होगा, सारे एलाइन हो जाएंगे एक लाइन में, सारे माइनस एक साइड और प्लस एक साइड, लेकिन ये पेयर में ही रहेंगे। यहाँ देखिए माइनस नीचे, प्लस प्लस माइनस, तो सारे माइनस एक साइड में, प्लस इधर, ये है सब प्लस। ठीक, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इधर हो जाएंगे लेफ्ट साइड सबका पेयर में, प्लस उधर, क्योंकि रिपल्सन की वजह से उधर, अट्रैक्शन की वजह से इधर। अब इसको यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। यहाँ देखिए ये सबको बीच वाले को न्यूट्रल कर दिए, केवल माइनस माइनस बचाएंगे, यह प्लस प्लस को बचाएंगे। अब इसको अर्थ कर देंगे, बहुत सारे अर्थिंग कर देंगे इसमें, तो ये सब प्लस निकल जाएगा, बचेगा क्या, केवल माइनस। तो चार्ज हो गया, ये कंडक्टर नहीं है, क्या है, ये इंसुलेटर है। तो चार्जिंग बाई पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन पढ़ेंगे हम लोग, आगे है पढ़ना है, तो इसको कहते हैं चार्जिंग बाई पोलराइजेशन। एक और चीज़ देखिए कॉन्सेप्ट में कि इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन टू बॉडीज इज कन्फर्म टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द टू बॉडीज। अगर दो बॉडियों के बीच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज नॉट कन्फर्म टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन टू बॉडीज, बिकॉज अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनदर अनचार्ज बॉडी एंड चार्ज बॉडी इन द केस ऑफ इंडक्शन। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस बॉडी पे देखिए, इस पर कोई चार्ज नहीं, नेट चार्ज जीरो है, तो भी इसको अट्रैक्ट करेगा। यानी ये अगर चार्ज बॉडी है, अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करता है। कंफर्म नहीं है कि इस पर चार्ज हो तभी ये
अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर रिपल्सन होना हो तो दोनों पे सेम चार्ज होना ज़रूरी है। यानी अट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, अट्रैक्शन के लिए चाहिए या तो बॉडी चार्ज हो या अनचार्ज हो। अनचार्ज अगर होगा तो उस पर नेट चार्ज 0 होगा। तो अगर इसको नज़दीक लाएंगे तो ये क्या करेगा, माइनस वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्लस वाले को रिपेल करेगा। अगर हम इस दोनों के बीच फोर्स देखें और ये दोनों के बीच फोर्स देखें, प्लस और माइनस, प्लस प्लस, तो प्लस माइनस के बीच फोर्स ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये नज़दीक है, ये वाला दूर है, तो ये बॉडी अट्रैक्ट हो जाएगी। जबकि इस पर कोई चार्ज नहीं था, नेट चार्ज 0 था। यानी F1 ग्रेटर देन F2, दिस इज अट्रैक्शन फोर्स। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन टू बॉडीज इज कन्फर्म टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन द टू बॉडीज। यानी रिपल्सन होने के लिए दोनों पे चार्ज होना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अट्रैक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है। यानी एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी ऑन चार्ज है, तो भी अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन रिपल्सन के लिए सेम चार्ज का कंफर्म टेस्ट है। ओके, चलिए आज इतना ही, थैंक यू।